پاکستان روس تعلقات کے نئے دور کا آغاز، وزیر اعظم عمران خان 2 روزہ دورے پر ماسکو روانہ۔ اعلیٰ سطح وفد بھی وزیر اعظم کے ہمراہ، صدر پوٹن کے ساتھ کل ملاقات ہوگی۔ دونوں رہنما جنوبی ایشیا کی ترقی، دو طرفہ تعاون اور اہم علاقائی امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ وزیر اعظم ماسکو میں روس کی سب سے بڑی مسجد اور اسلامک سینٹر کا بھی دورہ کریں گے۔ تحریک انصاف کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس، وزیر اعظم کے دورہ روس کے حوالے سے بات چیت، اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے معاملات پر بھی غور، آصف علی زرداری اور شہباز شریف کے کرپشن سے متعلق کیسز کی سماعت روزانہ کی بنیاد پر براہ راست نشر کرنے کا مطالبہ، قومی اسمبلی کے آئندہ اجلاس میں اس حوالے سے قرارداد پیش کی جائے گی۔ اپوزیشن ماضی کی طرح اب بھی ارکان اسمبلی کو پیسوں کی پیشکش کر رہی ہے۔ شہباز شریف اور زرداری کرپشن کے بڑے سائنسدان ہیں، ملازمین کے اکاؤنٹس میں آنے والے اربوں روپے کا حساب دینا پڑے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کا دورہ روس انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین اور وزیر مملکت فروخ حبیب کی میڈیا سے گفتگو۔ صادر ڈاکٹر عارف علوی کی پارلیمنٹ کی ڈیجیٹلائزیشن منصوبے کو جنوری 2023 تک مکمل کرنے کی ہدایت، پارلیمان کو سائبر صلاحیتوں سے لیس کرنے کے حوالے سے اجلاس، اسٹیئرنگ کمیٹی کی منصوبے پر ہونے والی پیش رفت پر بریفنگ، منصوبے سے اداروں کی کارکردگی میں بہتری اور شفافیت لانے میں مدد ملے گی، صدر مملکت۔ سابق وزیر داخلہ اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سینیٹر رحمان ملک انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 70 برس تھی۔ نماز جنازہ کل دن 2:30 بجے اسلام آباد کے چیٹ قبرستان میں ادا کی جائے گی۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، چیئرمین سینٹ، وزیر اطلاعات سمیت سیاسی رہنماؤں کا اظہار افسوس۔ اسلام آباد، راولپنڈی سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری۔ گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں رات سے وقفے سے برف باری۔ اسلام آباد سے گلگت اور اسکردو کے مابین فضائی سروس معطل۔ ہنزا، نگر، استور، خزر اور دیامر میں بارش اور برف باری سے سردی کی شدت میں اضافہ۔ اور شعبہ صحافت کے نامور استاد پروفیسر مہدی حسن انتقال کر گئے۔ پروفیسر مہدی حسن پنجاب یونیورسٹی سمیت متعدد نجی جامعات میں شعبہ ابلاغیات کے سربراہ رہے۔ وہ 50 سال تک شعبہ تدریس سے وابستہ رہے۔ شعبہ ابلاغیات میں خدمات پر انہیں ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ کیبنٹ آور کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد اور میں ہوں سلما کوثر۔ ٹاپ سٹوریز آپ جان چکے ہیں، تفصیلات شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ وزیر اعظم عمران خان کا تاریخی و اہم دورہ روس۔ روسی صدر کی دعوت پر 23 سال بعد پاکستانی وزیر اعظم بنیں گے ماسکو کے مہمان۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان بدھ کے روز یہاں اپنے سرکاری دورے پہ ماسکو پہنچ رہے ہیں۔ روس تعلقات کے نئے دور کا آغاز۔ یہاں آج +4 کا ٹمپریچر ہے اور میرا خیال ہے کہ گرم پانیوں کی ہوائیں وزیر اعظم کے ساتھ ماسکو آ رہی ہیں یا آ چکی ہیں۔ پاکستان کی آزاد اور متحرک خارجہ پالیسی کا اہم سنگ میل۔ جمعرات کے روز وزیر اعظم صدر ولادیمیر پوتن سے ملاقات کریں گے۔ رشین میڈیا کے اندر اس دورے کو خصوصی کوریج دی جا رہی ہے۔ اہم دورے کی بڑی کوریج لمحہ بلمحہ براہ راست صرف پی جی نیوز پر۔
हम सब पाकिस्तानी हैं और हम में से कोई भी सिंधी, बलोची, बंगाली, पठान या पंजाबी नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने पाकिस्तानी होने पर फख्र होना चाहिए। Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. वेलकम बैक नाजरीन। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 2 रोज़ा दौरा रूस पर मॉस्को रवाना हो चुके हैं। काबीना अरकान समेत आला सतह वफ़द भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सदर व्लादिमीर पुतिन की खुसूसी दावत पर रूस का दौरा कर रहे हैं। सदर पुतिन और वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात इस दौरे का अहम तरीन जुज़्व होगी। मज़ीद तफसील जानेंगे नुमाइंदा PTV न्यूज़ मोहम्मद नवीर अज़हर हमारे साथ मौजूद है। नवीर अज़हर, आगाह कीजिएगा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा रूस इंतहाई अहम है। जी बिल्कुल, जैसा आपने बताया कि सदर पुतिन और वज़ीर-ए-आज़म की जो मुलाकात है वो सबसे अहम तरीन इस दौरे का एक हिस्सा है। उसमें वज़ीर-ए-आज़म रूसी सदर के साथ जो बातचीत है उसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लेंगे। और आप इस चीज़ से बखूबी आगाह हैं कि पाकिस्तान जिसकी ज़मीन जो है उस रशियन जो सरजमीन के साथ मुख्तलिफ जो साबिक रशियन USSR की स्टेट्स हैं उसके ज़रिए ज़मीनी रास्ता है साथ, और ताल्लुकात के हवाले से क़याम पाकिस्तान के बाद से ही पाकिस्तान और रूस के दरमियान जो है वो बेहतरीन ताल्लुकात थे, डिफेंस रिलेशंस भी थे। तो मुख्तलिफ पहलुओं से पूरी दुनिया इस दौरे को इंतहाई अहम समझ रही है और रूसी क़यादत के साथ वज़ीर-ए-आज़म तवानाई और दीगर जो रवाबत हैं उसके हवाले से तबादला ख्याल करेंगे। दोनों रहनुमा जो हैं इलाकाई और बैनुल-अक़वामी मसाइल पर भी बातचीत करेंगे और ख़ास तौर पे
جو اسلاموفوبیا کا معاملہ ہے اور دنیا کے اندر اسلاموفوبیا سے متعلق آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان اور روسی صدر جو ہیں دونوں کے خیالات میں بہت ساری یکسانیت ہے، اس کے اوپر بات ہوگی۔ اس کے علاوہ افغانستان کی جو صورتحال ہے وہ پورے خطے کے حوالے سے انتہائی اہم ہے، اس کے اوپر بھی معاملات جو ہیں وہ زیر غور آئیں گے، اور وزیر اعظم اس دورے کے دوران روس کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے تمام جو راستے ہیں اس کے اوپر بات چیت کریں گے۔ وزیر اعظم کے دورے میں دیگر جو سرگرمیاں ہوں گی اس میں ماسکو میں روس کی سب سے بڑی جو مسجد ہے اور اسلامک سینٹر ہے، وزیر اعظم وہاں کا دورہ بھی کریں گے، اور اس کے علاوہ ان کی جو شہداء کی یادگار ہے اس کے اوپر بھی وزیر اعظم جائیں گے۔ ان کی جو سرگرمیاں ہوں گی ساری وہ پوری دنیا کی نظریں اس وقت وزیر اعظم کے اس دورے پہ ہیں، نہ صرف یہ کہ خطے کے پوائنٹ آف ویو سے بلکہ انٹرنیشنل پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ دورے کی خصوصی اہمیت ہے۔ جی بہت بہت شکریہ محمد نوید اظہر، آپ ہمیں آگاہ کرتے وزیر اعظم عمران خان کے دورہ روس کے حوالے سے۔ وزیر اعظم عمران خان دورہ روس پر ماسکو روانہ ہو گئے ہیں۔ ناظرین، پاکستان اور روس کے درمیان نئے دور کا آغاز، صدر ولادیمیر پوٹن کی دعوت پر وزیر اعظم عمران خان آج ماسکو پہنچ رہے ہیں۔ 23 برس میں کسی پاکستانی وزیر اعظم کا روس کا یہ پہلا دورہ ہے۔ رپورٹ کریں گے محمد نوید اظہر۔ روس کے ساتھ پاکستان کے دوستانہ تعلقات کا آغاز قیام پاکستان کے اگلے سال ہوا۔ روس نے پاکستان کی دفاعی ضروریات پوری کرنے کے لیے متعدد مواقع پر بھرپور معاونت کی ہے۔ پاکستان سٹیل ملز کراچی کا قیام، MI-17 اور MI-35 جنگی ہیلی کاپٹرز پاک روس دوستانہ تعلقات کی بہترین مثالیں ہیں۔ وزیر اعظم اپنے دورے میں روسی قیادت کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ توانائی کے منصوبوں میں تعاون پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ بڑا کلوز اسٹریٹجک الائنس ہے رشیا کا چائنا کے ساتھ، اور پاکستان کا کلوز اسٹریٹجک الائنس ہے چائنا کے ساتھ، اور اسی اگر آپ سمت میں دیکھیں تو آنے والے زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اور رشیا کے جو ریلیشن شپ ہوں گے ان میں بڑا برائٹ فیوچر ہے۔ دونوں لیڈرشپ کے درمیان میں بہت ہی کارڈیل ریلیشن شپ اور بہت ہی وارمتھ ہے، تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ پاکستان اور رشیا اسٹریٹجک ڈیسیجن کریں گے۔ روس کے نائب وزیر خارجہ وزیر اعظم کا استقبال کریں گے، اور جمعرات کے روز وزیر اعظم صدر ولادیمیر پوتن سے ملاقات کریں گے۔ خطے کی سلامتی کے علاوہ افغانستان کی صورتحال پر دو طرفہ ملاقات میں اہم پیش رفت کا امکان ہے۔ ہمیں پوری امید ہے کہ یہ دو ملک ایک نئے دور میں شامل ہو جائیں گے اور دوستی کا نیا باب کھلے گا۔ This visit has been anticipated for a long time, and we are very happy that he has decided to come to Moscow, and I hope this visit will produce very good results. امید ہے کہ یہ تاریخ ساز دورہ دونوں ملکوں کے درمیان اہم تعلقات کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوگا، اور انشاءاللہ ہم پورے پرجوش طریقے سے ان کا استقبال کریں گے۔ پاکستان خطے کا اہم ترین ملک ہے۔ علاقائی سلامتی ہو یا خطے میں امن و امان کی صورتحال، پاکستان نے ہمیشہ قائدانہ کردار ادا کرتے ہوئے مسائل کے حل پر بات کی ہے۔ اسلاموفوبیا پر بھی پاکستان اور روس کے موقف میں یکسانیت ہے۔ روسی صدر کی جانب سے اسلاموفوبیا پر دیے گئے بیان کو عمران خان نے نہ صرف سراہا بلکہ اس کو اقوام عالم کے لیے بھی اہم پیغام قرار دیا۔ محمد نوید اظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان کے دورہ ماسکو سے پاکستان اور روس کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو فروغ ملے گا۔ تجارت سمیت مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے وسیع امکانات کے حوالے سے اس دورے کو انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ آغا مسعود خالد نے رپورٹ تیار کی ہے، ملاحظہ کیجیے۔ پاکستان اور روس کے درمیان تعلقات میں پیش رفت معاشی اور دفاعی ترقی کی ضمن میں نئے دور کا آغاز ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا دورہ روس دونوں ملکوں کے درمیان جاری مذاکرات اور رابطوں کو جہاں نئی جہت فراہم کرے گا، وہیں خطے میں پائیدار امن کے قیام کی طرف ایک اہم پیش رفت ثابت ہوگا۔ We have a bilateral relationship with Russia, and we really want to strengthen it. As I said, regions develop. It's not countries don't develop in isolation. It's because of whole region goes up. وزیر اعظم عمران خان 2 دہائیوں کے بعد پہلے پاکستانی وزیر اعظم ہیں جو روس کا دورہ کر رہے ہیں۔ روس کی جانب سے بھی اس عزم کا اظہار کیا گیا ہے کہ دونوں ملکوں کے تعلقات انتہائی اہمیت کے حامل ہیں اور خطے میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کے باعث پاکستان روس کی خارجہ پالیسی کا اہم شراکت دار ہے۔ پاکستان کے معاشی ترقی اور پرامن بقائے باہمی کے واضح موقف کے تناظر میں پاک روس تعلقات خطے میں امن و استحکام کے حوالے سے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ روس میں مقیم پاکستانیوں نے وزیر اعظم عمران خان کے دورے کو خوشائند قرار دیتے ہوئے کہا کہ اعلیٰ سطح رابطوں سے دونوں ملک ایک دوسرے کے مزید قریب آئیں گے۔ پاکستان اور رشیا کے تعلقات اور زیادہ مستحکم ہو گئے۔ ہم اچھی توقعات رکھتے ہیں اپنے پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے کہ یہاں پہ بہت زیادہ اپرچونٹی ہے۔ یہ ایک بزنس کنٹری ہے
और इसमें पाकिस्तान में आने वाले जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए बहुत बहुत अच्छा मौके हैं। बहुत खुश हैं रशिया में हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान कोई अच्छी तवक्कुआत रखते हैं। हमारे लिए ये बहुत बेहतर बात है। हमारे जो जॉब होल्डर हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और खान साहब ने बहुत अच्छे अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं हमारे लोगों के लिए। हमें बहुत ज़्यादा उनके साथ अच्छी तवक्कुआत हैं। उम्मीद करते हैं कि रशिया और पाकिस्तान के दरमियान अच्छे ताल्लुकात कायम होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा मास्को पाकिस्तान और रूस के दरमियान ताल्लुकात के लिए नई मंजिलों का तयन और इलाकाई रवाबित को मजीद मुस्तहकम बनाने में मददगार साबित होगा। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर ने कहा है कि रूस दुनिया का सबसे बड़ा तवानाई सप्लायर है और रूस के साथ शोबा तवानाई में ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत कर रहे हैं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर तवानाई ने कहा कि LNG के हवाले से मंसूबों पर रूस से बातचीत हो चुकी है। वज़ीर आज़म इमरान खान अपने दौरे रूस में LNG के हवाले से भी बात करेंगे। उन्होंने कहा कि माजी में रूस के साथ तवानाई के शोबे में ताउन रहा है और दोनों मुल्कों के दरमियान तवानाई के शोबे में मज़ीद ताउन की गुंजाइश है। हम्माद अज़हर ने कहा कि शुमाली अमरीका और यूरोप के रूस के साथ तवानाई के हवाले से रवाबित हैं। रूस के सफ़ीर डनेला गनेश ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा दो तरफ़ा ताउन में फ़रोग़ के लिए अहम है। दोनों मुल्कों की आला क़यादत के मुज़ाकरात बाहमी ताल्लुकात के इस्तेहकाम के लिए मुफीद होंगे। PTV वर्ल्ड से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए रूसी सफ़ीर ने कहा कि रूस और पाकिस्तान एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। बाहमी ताल्लुकात के हवाले से दोनों मुल्कों का मुस्तक़बिल अच्छा है। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान को इंसानी बुनियादों पर इमदाद की फ़ौरी फ़राहमी की जानी चाहिए। रूसी सफ़ीर ने कहा कि तमाम अक़ायद का एहतराम ज़रूरी है। किसी मज़हब की तौहीन आज़ादी इज़हार राय नहीं। किसी को अपने नज़रियात दूसरों पर मुसल्लत करने का कोई हक़ नहीं है। खबरों का सिलसिला जारी है, भी वक्त हुआ है ब्रेक का। साथ रहिएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का तारीखी और अहम दौरा रूस। रूसी सदर की दावत पर 23 साल बाद पाकिस्तानी वज़ीर आज़म बनेंगे मास्को के मेहमान। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान बुध के रोज यहाँ अपने सरकारी दौरे पे मास्को पहुँच रहे हैं। रूस ताल्लुकात के नए दौर का आगाज। यहाँ आज +4 का टेम्परेचर है और मेरा ख्याल है कि गर्म पानियों की हवाएं वज़ीर आज़म के साथ मास्को आ रही हैं या आ चुकी हैं। पाकिस्तान की आज़ाद और मुतहर्रिक खारजा पॉलिसी का अहम संगमीर। जुमरात के रोज वज़ीर आज़म सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। रशियन मीडिया के अंदर इस दौरे को खुसूसी कवरेज दी जा रही है। अहम दौरे की बड़ी कवरेज लम्हा बलम्हा बराह रास्त सिर्फ BTV न्यूज़ पर। आलमे आब खाक में तेरे ज़हूर से फरोग, ज़र्रे रेग को दिया तूने तुलूए आफ्ताब। दुनिया की कोई कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक उसकी ख़वातीन मर्दों के शाना बचाना मुआशरे की तामीर और तरक्की में हिस्सा न लें। औरतों को घर की चार दीवारी में बंद करने वाले इंसानियत के मुजरिम हैं।
वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर से आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान वफ्द के हमरा तारीखी दौरे पर मॉस्को के लिए रवाना हो चुके हैं। उनके साथ वफ्द भी मौजूद है, काबीना अरकान भी मौजूद हैं। अहम मामलात पर बात होगी, सदर पुतिन से मुलाकात भी होगी। मोहम्मद नवीर अजहर हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा PTV न्यूज़। मोहम्मद नवीर अजहर, आगाह कीजिएगा, काबीना अरकान और वफ्द में कौन कौन शामिल है? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म के साथ जो अरकान काबीना हैं वो उनमें शाह महमूद कुरैशी हैं, चौधरी फवाद हुसैन हैं, असद उमर, हमाद अजहर, और इसके अलावा मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद, मुशीर कौमी सलामती मोहिद यूसुफ और आमर कियानी जो हैं वो भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। और इस दौरे के हवाले से ख़ुसूसी तौर पे पूरी दुनिया की नज़र में इसको इंतहाई अहमियत दी जा रही है। और वज़ीर आज़म इस दौरे में सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात करेंगे। मुलाकात में ना सिर्फ ये कि बाहमी जो दो तरफ़ा अमूर हैं उनके ऊपर बातचीत होगी, बल्कि तवानाई के शोबे में ताउन समेत दीगर जो इलाकाई और बैन अक़वामी मसाइल है उसके ऊपर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। मैं आपको बताऊं कि रूसी सदर और वज़ीर आज़म इमरान खान के इस्लामोफोबिया के हवाले से जो ख्यालात हैं उसमें बहुत सारी यकसानियत है। इसके अलावा अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के ऊपर भी दोनों रहनुमा जो हैं वो बातचीत करेंगे। और अफ़गानिस्तान में इस वक्त जो इंसानी अलमी है उसके हवाले से वज़ीर आज़म अक्सर उस चीज़ के ऊपर फोकस करते रहते हैं, उसके ऊपर भी वो रूसी सदर को तफसीलात से पाकिस्तान के हवाले से भी बात होगी, दो तरफा ताल्लुकात के हवाले से भी बात होगी और खित्ते की सूरत हाल पर भी दोनों रहनुमा मुलाकात में गुफ्तगू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नवीद अजहर। नाज़रीन, अभी रुख करेंगे कोयटा का, जहां वज़ीर मज़हबी उमूर नूरुल हक कादरी कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत और मुल्क के एक ढांचे में फरो दिया और सबके दरमियान मीसाके मदीना जो कि कोयटा में इस वक्त एक कॉन्फ्रेंस जारी है। वज़ीर मज़हबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मुल्क की तारीख में पहली मरतबा बरामदी तरक्की से मुतालिक मनसूबाबंदी मुतारिफ कराई जा रही है। इस्लामाबाद में मुल्क की तरक्की के लिए मनसूबाबंदी, लाहे अमल के फ्रेमवर्क और इस निज़ाम में इस्लाहात पर आला सतह इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि बदकिस्मती से माजी की हुकूमतों ने तरक्याती मनसूबाबंदी करते वक्त कौमी मफाद को तरजीह नहीं दी। कौमी मईशत में हुनरमंद अफरादी कुव्वत, सियाहत और समंदर पार पाकिस्तानियों की अहमियत को उजागर करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत मुल्क में सनती तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दे रही है, जिससे रोजगार के नए मौके पैदा होंगे और बरामदात में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि बरामदात में इजाफे के लिए बैरून मुल्क पाकिस्तानी सफारत खानों के किरदार को मजीद फाल बनाया जा रहा है। इजलास को वजारत मनसूबाबंदी की तरफ से हुकूमत के 5 साला तरक्याती मनसूबाबंदी के तरीक़ाकार और इस्लाहात के प्रोग्राम पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास को बताया गया कि तरक्याती मनसूबाबंदी की तश्कील के हवाले से मौजूदा निज़ाम ज़रूरी तब्दीलियाँ न होने की वजह से फरसूदा हो चुका है, जिसकी बेहतरी के लिए वजारत मनसूबाबंदी ने तरजीही बुनियादों पर इस्लाहाती लाहे अमल तैयार किया है। इस्लाहाती प्रोग्राम के तहत मुल्की तरक्की मनसूबाबंदी के लिए बरामदी और सनती शोबे की तरक्की, रोजगार की फराहमी और फीकस आमदन बढ़ाने को बुनियादी हैसियत दी जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म के दौरा रूस और मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया गया। इजलास में अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद के हवाले से भी मामलात ज़ेर गौर आए। तफसील से आगाह करेंगे आगा मसूद खालिद। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत होने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में वज़ीर आज़म के दौरे रूस और खारजा पॉलिसी के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर वाज़ेह किया कि पाकिस्तान किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं और मतवाज़न खारजा पॉलिसी लेकर आगे चल रहा है। इजलास में रूस यूक्रेन तनाज़े पर गौर किया गया और उम्मीद जाहिर की गई कि यह मसला मुज़ाकरात के जरिए पुरअमन तरीके से हल हो। इजलास में अफगानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। इजलास में इस अज़्म का भी इजहार किया गया कि हमारी तरजीह बाहमी एहतराम और माशी ताल्लुकात के फरोग पर मबनी है। इजलास में मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया गया। इजलास में अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद के मामलात भी ज़ेर गौर आए। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि अपोजिशन माजी की तरह अब भी अरकान पार्लियामेंट को पैसों की पेशकश कर रही है। हॉर्स ट्रेडिंग का बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान में खात्मा होने की एक उम्मीद पैदा हुई थी, लेकिन ये दोनों जमातें मिलके उसको दोबारा वापस लाना चाहती हैं।
یہ انشاءاللہ ہم نہیں ہونے دیں گے. ہماری بڑی گہری نظر بھی ہے اور میں یہاں پہ اپنے MNAs کو بھی سلام پیش کرنا چاہتا ہوں, اپنے ممبران جو منتخب ہیں, کہ انہوں نے تمام معاملات کے اوپر پارٹی لیڈرشپ کو اعتماد میں رکھا, ان کو بتایا. 1 ہفتہ ہو گیا ان کو یہ طے کیے کہ نو کانفیڈنس لے کے آئیں گے, اور میں نے یہ کہا تھا کہ آپ میں جرت ہے تو کل ہی لے کے آئیں, لیکن آپ نہیں لا سکے. میرا ان کو چیلنج ہے کہ وہ اگلے 24 گھنٹوں میں لے کے آئیں, اور تو ان کو لگ پتہ جائے گا کہ ان کے ساتھ ہوتی کیا ہے. وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب نے کہا کہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے پارلیمانی بورڈ تشکیل دے دیا گیا ہے. بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بااختیار نظام دے رہے ہیں. فاروق حبیب نے کہا کہ شہباز شریف اور زرداری کرپشن کے بڑے سائنسدان ہیں, انہیں ملازمین کے اکاؤنٹس میں آنے والے اربوں روپے کا حساب دینا پڑے گا. ہم نے یہ ایک جرات مندانہ اقدام لیا, ہم نے ڈائریکٹ انتخابات جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے اندر بھی کروائے, اور ایک مضبوط لوکل باڈیز کا ایک بااختیار نظام جو ہے وہ ہم لے کر آئے ہیں, اور جو آئینی ریکوائرمنٹ ہے اس کو ہم انشاءاللہ پنجاب کے اندر بھی پورا کرنے جا رہے ہیں. اور وزیر اعظم صاحب نے عوامی رابطہ مہم کا بھی جو ہے وہ آغاز کیا ہوا ہے. یہاں یہ سوال نہیں ہونا چاہیے کہ عدم اعتماد اب آئے گی کب آئے گی. یہاں پر ہمارے نزدیک جو اہم سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ پہلے جو ہے وہ پاپڑ والے, فلودے والے, آصف علی زرداری نے اندر جانا ہے, یا مقصود چپڑاسی اور مسرور انور والے شہباز شریف نے پہلے اندر جانا ہے. ہماری CEC کا بھی یہ آج مطالبہ ہے کہ ان کی ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہونی چاہیے, یہ لائیو میڈیا کے سامنے آنی چاہیے, اور جیسے ہی یہ اسمبلی کا اجلاس بھی ہوگا, ہماری قرارداد بھی تیار ہے, وہ قرارداد بھی ہم اسمبلی کے اندر جو ہے وہ پیش کریں گے. وزیر مملکت اطلاعات نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے عوامی رابطہ مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے, اور منڈی بہاؤالدین جلسے نے یہ ثابت کر دیا کہ عوام اپنے قائد پر بھرپور اعتماد رکھتی ہے. آغا مسعود خالد, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. جو عہد کی, جو امان کی, اس کی مخالفت کرتے ہیں, تو جو ویزا سے آتا ہے, خواہ ہندو ہے, خواہ سکھ ہے, خواہ بدھ مت ہے, خواہ مسیحی ہے, خواہ یہودی ہے, جو بھی آتا ہے اس ملک میں اس کے لیے امان رہے گا. یہ پیغام پاکستان آپ کو بتاتا ہے. یہ پیغام پاکستان آپ کو بتاتا ہے کہ تم اپنی زبان بولو, اپنی زبان کی خدمت کرو. ٹھیک ہو, پختون ہو, بلوچ ہو, پنجابی ہو, سندھی ہو, مہاجر ہو, جو کچھ بھی ہو, اپنی زبان پہ قائم رہو. بچوں کو سکھاؤ, اپنے بچوں کو آگے بڑھاؤ, تعلیم ترقی کے مواقع دو. لیکن زبان کا جو فرق ہے, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُوا, یہ تو صرف آپ کی پہچان کے لیے ہے. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے عزت والا بندہ وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور اللہ کے قریب تر ہے, وہ ہے. حضور نے ان چیزوں کو ختم کر دیا. حجت الوداع میں آپ نے فرمایا کہ کسی عجمی کا کسی عربی پر فخر نہیں, کسی عربی کو کسی عجمی پر فخر نہیں, کالے کو گورے پر نہیں اور گولے کو کارے پر نہیں ہے. صرف فرق جو ہے, بلندی جو ہے وہ تقوی پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کون زیادہ قریب تر ہے. پیغام پاکستان یہ درس ہمیں دیتا ہے. اس طرح کے جو پیغام سردار صاحب, خالد سلطان صاحب کرتے ہیں یا حبیب اللہ شاہ صاحب کرتے ہیں, ان پروگرامز کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس اخوت, اس بھائی چارے, اس دوستی کی طرف آ جائیں, اور بطور خاص ہم نفرتوں کو, الحمدللہ ہمارا پیغام یہ سٹیج پر جتنے لوگ ہیں, سیاسی ہے, دینی ہے, روحانی ہے, ہم سب کا پیغام جو ہے وہ محبتوں کا پیغام ہے, دوستیوں کا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ قربت اور نزدیکت کا ہے. ایک مشہور بزرگ ہے بابا فرید الدین گنج شکر, اس کی طرف کوئی آیا اور مہمان آیا مرید, تو اس نے تحفے میں ایک کینچی پیش کر دی. تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر پاک پٹن شریف والے, انہوں نے فرمایا کہ کاش تم مجھے سوئی اور داغا لے آتے. تو اس کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ کنچی کا کام ہے کاٹنا, جدا کرنا, اور سوئی اور داغے کا کام ہے جوڑنا.
मुत्तहिद करना, मुत्तफिक करना। हमारा जो काम है, हमारा काम है मुत्तफिक करना, मुत्तहिद करना और बाहमी मोहब्बत के फ़िज़ा को पैदा करना। इस पैगाम का नाम पैगाम पाकिस्तान है। और बतौर ख़ास जो इस्लाम के ख़िलाफ़ दुनिया भर में इस्लाम को एक दरिंदों की मज़हब के तौर पर पेश किया जा रहा है, हालांकि ये दीन रहमत है, ये दीन शफ़क़त है, ये दीन मोहब्बत है। और क्यों ऐसा पेश किया जा रहा है? इसलिए किया जा रहा है ताकि कुरान और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की तरफ लोग आ न जाएं। जब आएंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे और अमल करेंगे, वो लाज़िमन इस्लाम में दाखिल होंगे। इसलिए एक खौफ की फ़िज़ा पैदा की गई है। इसको हम कहते हैं इस्लामोफोबिया। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस्लामोफोबिया को इस वक्त जो बदतरीन शक्ल है वो हिंदुस्तान में है। जो बदतरीन तस्वीर इस्लाम से नफ़रत का है वो हिंदुस्तान में है। बाकी दुनिया में तो कुछ तंजीमें हैं, कुछ इदारे हैं, वो करती है। हिंदुस्तान में हुकूमत हिंदुस्तान करती है, मोदी सरकार खुद करती है और मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत को उभारती है। और मुसलमानों को कहा जा रहा है कि आप अगर हिंदुस्तान में रहना है, हिंदुत्व का नज़रिया है कि जो हिंदुस्तान में रहेगा वो हिंदू बन के रहेगा। उसको न मसीहियत कबूल है, न सिख कबूल है, न मुसलमान कबूल है, वो हिंदू बन के रहेगा। मगरबी बंगाल, आसाम, बंगाल के जो लोग थे उनको कहा गया, आईनी दफात के ज़रिए कहा गया, आप हिंदुस्तान छोड़े या बंगाल चले जाए, मशरक़ी बंगाल, बांग्लादेश, या मशरक़ वस्ता चले जाए या पाकिस्तान चले जाए। और आज जिस तरीके से पर्दे पे मुसलमान ख़वातीन को टार्चर किया जा रहा है, मुझे अफसोस होता है कि वो ख़वातीन की नाम नहाद वो तंजीमें, ख़वातीन की हुकूक़ के लिए नाम नहाद वो इदारे जो शोर मचाती रहती है, उनको मुस्कान क्यों नहीं आती? उनको हिंदुस्तान की वो खातून क्यों नज़र नहीं आती जो हर रोज़ कुड़ती है और एक अज़ाब से गुज़रती है, अपनी मर्ज़ी का, अपनी दीन के शार का लिबास बापर्दा और बाहया नहीं पहन सकती। कोयटा में वज़ीर मज़हबी उमूर पीर नूर अल हक कादरी कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस्लामोफोबिया की बदतरीन मिसाल हिंदुस्तान में है, मोदी सरकार इसकी सरपरस्ती कर रही है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि इंसानी आज़ादिया करना एक अहम मामला है, इससे मुतालिक वाज़ेह फ्रेमवर्क होना चाहिए। ज़रूरी है कि तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर इस हवाले से इक़दाम करें। वो रावलपिंडी में निजी फलाही इदारे पाथवेल के बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। तफसील से आगाह करेंगे असद यार खान। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि इंसानी एज़ा की गैर कानूनी पेवंदकारी एक अहम मामला है। दुनिया के कई मुल्कों में इस हवाले से कानून मौजूद है, जिसकी वजह से सेहत के मसाइल जन्म नहीं लेते। उन्होंने कहा कि एहतियात इलाज से बेहतर है। मस्जिद वो मेंबर सेहत के मसाइल से आगाही में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। हम रिचुअल्स और अल्लाह की इबादत करते हैं, ये हमारे लिए एक रिमाइंडर है कि हम एक दूसरे के साथ क्या ताल्लुक़ बर्पा करें, और जो उसने दिया वो एक अमानत है, चाहे इल्म हो और चाहे पैसा हो। पाकिस्तान के अंदर ओबेसिटी और डायबिटीज़ बढ़ा है, तो किसी को मिल नहीं रहा और कोई ज़्यादा खा रहा है। आई वुड थिंक ऑफ एनकरेजिंग द पीपल टू अंडरस्टैंड प्रिवेंशन मच मोर। जो वज़ू के अंदर लोग हाथ धोते हैं, इसकी अहमियत ये है कि 5 मरतबा आदमी हाथ धो ले अच्छी तरह से, तो कम्युनिकेबल डिजीज़ कम हो जाती हैं। और मैं समझता हूँ कि मस्जिद इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म टू कम्युनिकेट हेल्थ इश्यूज़ ऑल्सो। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुल्क को पोलियो से पाक करने में हुकूमती कोशिशों को सराहते हुए कहा कि बिल गेट्स ने पोलियो के खात्मे के लिए पाकिस्तान की मदद की। पाकिस्तान ने पोलियो के तजुर्बात को सामने रखते हुए कोरोना के खिलाफ मौसर हिकमत अमली अपनाई, जिसे दुनिया भर में सराहा गया। पाथवेल के सदर मेजर जनरल रिटायर्ड शोहेब अहमद और मेजर जनरल रिटायर्ड परवेज अहमद ने बताया कि उनका इदारा 1991 से थैलासीमिया के लिए काम कर रहा है। NGO शोबे में ये पहला मरकज है जो हेमाटोलॉजी
और बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए कायम किया गया है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने इस मौके पर बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर का इफ्तिताह किया। तजुर्बाकार और माहिर डॉक्टर्स की निगरानी में ये मरकज माशरे के कमजोर अफराद को सेहत की सहूलतें फराहम कर रहा है। मुल्क में इस वक्त बोन मैरो ट्रांसप्लांट के 10 मरकज कायम हैं। बेहतर आगाही और पैदाइश से कबल तशखीस के जरिए इस पर काबू पाया जा सकता है। असद यार खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुआविन ख़ुसूसी उमूर सिंध डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम ने मुलाकात की और सिंध हुकूक मार्च के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया। डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम ने सिंध हुकूक मार्च के इंतजामात और तैयारियों के हवाले से वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी को ब्रीफिंग दी। वज़ीर ख़ारजा ने सिंध हुकूक मार्च की तैयारियों पर इजहार इत्मीनान करते हुए कहा कि PTI सिंध के पिसे हुए अवाम को किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ेगी। सिंध के पसमानदा इलाकों की तामीर और तरक्की और सिंध के अवाम को हुकूक की फराहमी के लिए पुरअज़्म हैं। वफाकी दारुल-हुकूमत में अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सेफ सिटी मंसूबा इंतहाई अहमियत का हामिल है। माजी में माली बदउनवानी के बायस ताख़ीर का शिकार रहा। गुज़श्ता अदवार में नाकिस कैमरे और स्कैनर्स मंगवाए गए। इस बारे में तफसील से आगाह करेंगे मोहम्मद मजहर अब्बास। इस्लामाबाद सेफ सिटी मंसूबे में भी साबिक हुक्मरानों की करप्शन आश्कार। ताखीर दर ताखीर से लागत बढ़ती गई और कौम का पैसा लुटेरों की जेबों में जाता रहा। हद तो ये है कि 2009 में शुरू होने वाला हसास मंसूबा 2 हुकूमतें भी मुकम्मल न कर सकी। एहतसाब की बात आई तो सबूत फिर गायब। नैब अभी तक करप्ट अनासर के ताक़ुब में है। वफाकी दारुल हुकूमत होने के नाते मुल्क के तमाम अहम इदारों के दफातर समेत गैर मुल्की सफारत खाने भी इस्लामाबाद में हैं। 12 बरस पहले बढ़ते हुए जराइम के पेश नजर इस्लामाबाद सेफ सिटी मंसूबे की मंजूरी उस वक्त की हुकूमत ने दिसंबर 2009 में दी। बगैर किसी टेंडर के ठेका गैर मुल्की कंपनियों को दिया गया। मंसूबे में माली बदउनवानी के बायस अगस्त 2011 में अदालत ने $124 मिलियन के मुआहदे को खत्म करार देते हुए नैब को उस वक्त के वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया। जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, हम उस रिक्वायरमेंट को हमने नहीं लिया। प्रोजेक्ट ओके भी हो गया, लेकिन उसके साथ जो बहुत सी रिलेटेड चीज़ें होती हैं ना, उसको समहाउ इग्नोर कर दिया और फिर वो चीज़ें चेंज होती गई और फिर कैमरे मॉडर्न होते गए, सोफिस्टिकेटेड होते गए, टेक्नोलॉजी और एडवांस होती गई। कि उस वक्त के जो करता धरता थे उन्होंने सेफ सिटी कैमराज में और इस मंसूबे में खासी करप्शन की। 3 तरह के कैमरे मंसूबे में शामिल किए गए। कैमरे मार्केट रेट से ज्यादा निर्खों में खरीदे गए। मंसूबे के तहत पूरे शहर में 1840 कैमरे नस्ब किए गए। कुछ रोज बाद ही बहुत से कैमरे खराब पाए गए। नून लीग की हुकूमत में इस पर 15 अरब रुपए खर्च किए गए। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला तो 1900 में से सिर्फ 600 कैमरे दुरुस्त हालत में थे। मौजूदा हुकूमत ने नए कैमरे लगवाए और सेफ सिटी कंट्रोल रूम बनाया, जिससे शहर को दरपेश सिक्योरिटी के मसाइल में खातिर-खा कमी आई। अब तो हमने इनैक्ट कर दिया है सेफ सिटी के साथ और ट्रैफिक पुलिस के साथ। उस वक्त नैब ने पूरी उसके ऊपर अपनी रिपोर्ट भी सबमिट कराई थी कि उसके जो उस वक्त के जो रूल्स थे, उसको पेपरा रूल्स को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किया गया था और जिस तरह की उस पर बाइंग की गई थी, जिस तरह प्रोक्योर किया गया था, उसकी बहुत सारी वायलेशंस थी। इस्लामाबाद सेफ सिटी की मदद से 49% केसेस का सुराग लगाया गया। बाकायदा सेफ सिटी कंट्रोल रूम के क़याम से शहर इक़्तिदार में जराइम की शरह में भी कमी आई। 1900 कैमराज हमारे मजीद IDWP जो पहला फॉर्म होता है उससे अप्रूव हो गए, कॉस्टिंग अराउंड 2.5 बिलियन रुपीज़। तो वो प्रोसेस में है। कैमरे इंटीग्रेट करने का प्रोसेस जारी है। फिर हमारी कैपेसिटी है इस्लामाबाद को देखने की या क्राइम को देखने की, ट्रैफिक फ्लो को देखने की या इश्यूज़ को देखने की, वो हमारी जैसे हम अब 30% एरिया के इश्यूज़ देख रहे हैं, फिर इंशाल्लाह हम 60-70% एरिया जो इस्लामाबाद का वो कवर हो जाएगा। इस्लामाबाद सेफ सिटी कैमरों की मदद से कंट्रोल रूम में न सिर्फ गाड़ियों की शनाख्त की जाती है बल्कि चेहरा भी देखा जा सकता है। 15 इमरजेंसी कॉल पर भी फौरन रिस्पांस दिया जाता है। बाइक चोरी की कंप्लेन है तो उन्होंने हमें कॉल किया, मैडम हमारा बाइक चोरी हो गया, तो हम उनसे बेसिक पूछेंगे, डिस्पैच वाले जो है आगे मुतलका थाने को पास करते हैं। इस्लामाबाद सेफ सिटी की मदद से जिन केसेस को हल करने में मदद मिली, इनमें कई संगीन जराइम शामिल हैं। मौजूदा हुकूमत की सिक्योरिटी के हवाले से बेहतरीन हिकमत अमली अपनाए जाने से इस्लामाबाद अब पहले से ज्यादा महफूज है। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। अभी खबर ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, साबिक सेनेटर और साबिक वफाकी वजीर दाखिला रहमान मलिक इंतकाल कर गए।
उनकी उम्र 70 बरस थी। मरहूम रहमान मलिक अरसे से इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। कोरोना की वजह से उनके फेफड़े शदीद मुतासर हुए थे। रहमान मलिक 2008 से 2013 तक वफाकी वज़ीर दाखिला रहे। उनकी नमाज जनाजा कल दोपहर 2:30 बजे H8 कब्रिस्तान में अदा की जाएगी और वहीं तदफीन होगी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान ने साबिक़ वज़ीर दाखिला सेनेटर रहमान मलिक के इंतकाल पर इज़हार अफसोस किया है। नाज़रीन, शोबा सहाफ़त के नाम पर उस्ताद मेहदी हसन इंतकाल कर गए। प्रोफेसर मेहदी हसन पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबा अब्लागियात के सरबराह रहे। अब 50 साल तक शोबा तदरीस से भी वाबस्ता रहे। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। इब्लागियात में उस्तादों के उस्ताद माने जाने वाले डॉक्टर मेहदी हसन 1937 में साहिवाल में पैदा हुए। पंजाब यूनिवर्सिटी से सहाफ़त में PhD की और वहीं से तदरीस का बाकायदा आगाज़ किया। रिटायरमेंट के बाद भी निजी यूनिवर्सिटियों में सहाफ़त के तालिब इल्मों को खबर की साख और गैर जानिबदारी का दर्स देते रहे। ज़िंदगी भर वो इस दलील पर कायम रहे कि सहाफ़त में जानिबदारी तारीख़ को मस्क करने का बाइस बन सकती है। बात करने का अंदाज़ इंतहाई शगुफ्ता और मुलायम, लेकिन बात के अंदर गहराई इतनी होती कि दिलो दिमाग को छू लेती। मेहदी हसन साहब का मल्टी डायमेंशनल कंट्रीब्यूशन है। बहुत बहादुर और बेबाक आदमी थे। जो वो सोचते थे वो कह देते थे। डॉक्टर मेहदी हसन के बेलाग तबसरों ने उन्हें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बतौर तजिया निगार भी मकबूलियत बख्शी। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ उनकी वाबस्तगी और मजलूम तबके के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदोजहद उनकी ज़िंदगी का हिस्सा रही, जबकि उनके तहरीर करता किताब पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान सहाफ़त के तालिब इल्मों के लिए हमेशा मशअल राह रही है। डॉक्टर मेहदी हसन साहब का नाम मेरा ख्याल है पाकिस्तान की सहाफ़त और सियासत में बड़ा इम्पॉर्टेंट है। जितनी भी यूनिवर्सिटियों में सहाफ़त का शोबा है और जहाँ पे जो टीचर्स जो चेयरमैन हैं वो किसी न किसी दौर में मेहदी हसन साहब के शागिर्द रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सियासत में हिस्सा लेकर सहाफ़ियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ भी किया। उनकी अदबी और सहाफ़ती खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें सितारे इम्तियाज़ से भी नवाजा। खबर की दुनिया में उनके बेशुमार शागिर्द शायद ही कभी किसी खबर पर इतने बोझल हुए हों जितने उदास वो अपने रहबर की जुदाई की खबर पर हुए। उन्होंने तमाम उम्र इंसानी हकूक़ की बहाली और तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदोजहद की और असूलों पर कभी समझौता नहीं किया। हुमा सदफ, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, लाहौर। घनघोर घटाएं, ठंडी हवाएं, बरसती बूंदें, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। तफसील जानिए इस रिपोर्ट में। नाज़रीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, शिमाल मशरक़ी पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मजीद हल्की से दरमियानी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है, जबकि मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। इस दौरान चंद मकामात पर तेज बारिश, यालाबारी का भी इम्कान है, जबकि मरी गलियात में बर्फबारी की तवक्को है। अगर बात की जाए शहर इक़्तिदार की, तो कल से बरसी बारिश से मौसम मजीद ठंडा हो गया है। रिमझिम बरसती बूंदों और खूबसूरत मौसम में इस्लामाबाद के कुदरती मनाजिर दिलफरेब मंजर पेश कर रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश से मौसम तब्दील हो गया और जाती सर्दी रुक गई है। मौसम भी सुहाना हो गया है। बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। स्कर्दू शहर में 4 इंच, जबकि बालाई इलाकों में 8 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। जिला अस्तोर में रात गए से शदीद बर्फबारी जारी है और शदीद बर्फबारी से बालाई इलाकों का हेडक्वार्टर से राबता मुनक़ता हो गया है। बर्फबारी के बायस कुछ इलाकों में शुरू होने वाली काश्तकारी का सिलसिला भी रोक दिया गया है। जिला गिजर के बालाई इलाकों में गुज़श्ता रात से बर्फबारी जारी है। मैदानी इलाकों में ठंडी हवाओं के साथ साथ हल्की बारिश का सिलसिला भी जारी है। लोगों ने गर्म कपड़े पहनना शुरू कर दिए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ये सिलसिला जुमे तक जारी रहेगा। मौसम के अहवाल के साथ ही कैबिनेट आर का वक्त खत्म हुआ। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे इलाकाई खबरें।